नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. In fact, this is the second video which I am making on the series of science of habit formation. In the previous video, we saw first law of habit formation, and in that we also saw the importance of habits in human life. We also saw how motivation is not a reliable strategy. Motivation के ऊपर हम क्यों डिपेंड नहीं रह सकते हैं, and we talked about it. Now, if I want to give you a quick recap of whatever we saw in the last video. तो फर्स्ट लॉ ऑफ हैबिट फॉर्मेशन वाज नथिंग बट मेक इट ऑब्वियस। उसमें हमने वी सॉ द हैबिट स्टैकिंग वगैरह के बारे में देखा था। इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियो, आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट फर्स्ट एंड देन गो थ्रू, इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। हमने वहाँ पे देखा था कि हैबिट को अगर हमें बिल्ड करना है तो हमें वी नीड टू मेक इट ऑब्वियस। तो अगर इसका इन्वर्स हम कर दे, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू इफ आई नीड टू ब्रेक अ हैबिट। अगर मुझे कोई आदत छोड़नी है विच इज़ नॉट सर्विंग मी एनी बेटर, इफ आई वांट टू गेट rid ऑफ एनी हैबिट, so what should I do? That is a bigger question, a $1 million question which need to be answered over here. तो अगर बिल्ड करने के लिए वी आर मेकिंग इट ऑब्वियस, तो इसका अगर हम इन्वर्स कर दे, दैट इज नथिंग विच मेक इट इनविजिबल, सो इट विल बी यूज टू ब्रेक अ हैबिट। इसको हम हैबिट को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स सी इट। I would like you to go through this short clip. She is a neuroscientist. I'm a neurology doctor, and here's the most effective way to change your habits. Here is the most common way people try to change their habits. Stop it. Quit that. Put that down. Don't do that. Now, here is why that doesn't work. This is your brain. It has 86 billion neurons. It's actually a number so large that it's quite hard to comprehend. It's probably similar in magnitude to the number of stars that are in the galaxy. Now think of each neuron like a tree. 86 billion trees, and they all have branches that interconnect them with each other. It is in those connections that the habit is stored. Now, apart from having a pathology that causes those trees to die, things are rarely deleted from the brain. Instead, they are replaced by new things. So instead of trying to stop your habit, try replacing it with another one. This is the kind of thing that will encourage new connections to grow in your neurons. Okay, if you haven't understood this video, don't worry, I'll make the explanation as easy as ABCD. What she is trying to convey, वो बता रही है कि that once habit is formed in the mind, it cannot be broken. उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, दैट इज द ट्विस्ट। सो व्हाट इफ वी कैन नॉट ब्रेक द हैबिट, तो क्या हम उसको कभी भी दूर नहीं रह सकते उसके, या व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिप्लेस इट विद द अनदर बिहेवियर। so this is what she is trying to convey। और ऐसा क्यों होता है? she is saying that just imagine there are 86 billion neurons in our mind। 86 billion, it's a huge number। now you can say these are equivalent to the number of stars in the galaxy। अब हर एक न्यूरॉन जो है एक वो ट्री की तरह, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, सो इस फॉरगिव मी फॉर दैट। तो इसमें ऐसे ट्रीज हैं, एंड ईच एंड एवरी ट्री, ये उसके जो ब्रांचेस है दे आर इंटरवाइंड। और जस्ट इमेजिन 86 बिलियन ट्रीज, उनके ब्रांचेस आर इंटरवाइंड, और वो इंटरवाइंड कनेक्शन के अंदर यहाँ पे आपका हैबिट होता है। so that's why it's very difficult to, it's not possible to delete a habit once it get formed। so what we need to do, we need to replace the habit। and when it comes to replacing the habit, the worst advice that you will get is use your willpower। हमेशा आपको कोई भी बोलता है कि यार why don't you get rid of smoking, it's very easy to do it, you don't have willpower, हम ऐसा बोलते हैं, but it is absolutely wrong। why? because willpower is a very limited resource। what I am trying to convey, याद को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। विल पावर जो है, जस्ट इमेजिन फॉर एग्जांपल हमें 60 यूनिट्स के विल पावर के 60 यूनिट्स एक दिन में मिलते हैं। नाउ इफ योर रूटीन इज, अगर आपका रूटीन ऐसा है और आपका इन्वायरमेंट और सराउंडिंग ऐसा है जहाँ पे हर एक एक्शन में अगर आपको विल पावर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है,
तो आपके 60 यूनिट्स क्वाइट लॉजिकल बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, एंड देर विल बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल क्विट, आप आपका विल पावर को खो दोगे। दैट्स वाई विल पावर इज अ वेरी प्रेशियस थिंग एंड यू नीड टू यूज इट वेरी जूडियसली। आपको कहाँ पे और कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। So if you are using willpower, if you are using only willpower to replace a habit or to break a habit, that's the incomplete strategy that you are following। और हमें ऐसा लगता है कि यार मैं उस हैबिट को ब्रेक नहीं कर पाया, उस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाया, बिकॉज यू आर नॉट, यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी विच इज अनसाइंटिफिक, वो अनसाइंटिफिक है। so in fact there was a research which I was recently going through, that research was done on the people who claimed that they have a strong will power, सबसे ज़्यादा विल पावर। एंड जब रिसर्च किया गया उन लोगों के ऊपर कि वाई दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, सो द तो द रिजल्ट वाज कम्प्लीटली फैसिनेटिंग। व्हाट वाज द रिजल्ट? उस रिजल्ट में पता चला कि उन लोगों, वो लोग जो लोगों का विल पावर सबसे ज़्यादा है, पीपल हु हैव द स्ट्रॉन्ग विल पावर यूज इट द लिस्ट। मतलब जो लोगों का विल पावर सबसे ज़्यादा है, वो लोग कौन थे? जो विल पावर को सबसे कम यूज करते थे। एंड इट्स वेरी लॉजिकल बिकॉज आई टोल्ड यू विल पावर इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स। अगर आपका रूटीन में और सराउंडिंग में आपको हर बार विल पावर की यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो यू विल लूज द विल पावर। So make sure that using willpower only is the worst strategy you can follow to replace or to replace any habit। So what we need to do, तो हमने क्या करना चाहिए? ओके, डजेंट मैटर हाउ मॉडर्न यू फील यू आर। हाँ, आपको कितने मॉडर्न हो आप लगता होगा, आपको ऐसा भी लगता होगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा विल पावर है, आई कैन डू इट। बट ट्रस्ट मी, व्हाट यू फील, नेचर को उससे कोई लेन देन नहीं है, और माइंड को भी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ माइंड। दो वी आर मॉडर्न, बट वी स्टिल हैव द माइंड of our ancestors, so we are basically a modern man with a prehistoric हार्डवेयर। तो किसी किसी को लगता है कि, इनफैक्ट मुझे बहुत लगता था कि मेरे पास बहुत स्ट्रांग विल पावर है और मैं कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ। या ऑल ऑफ अस हैव द विल पावर, बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका विल पावर खत्म हो जाएगा और आप उसको, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो वी आर बेसिकली, तो इट्स नॉट माय ओपिनियन कि हमारा विल पावर कम है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। तो चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर विल पावर यूज करना इज अ हाफ स्ट्रैटेजी, तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है उसके साथ? वी नीड टू मेक द हेल्दी ब्लेंड ऑफ, दैट इज नथिंग बट वी नीड टू ऑप्टिमाइज द इन्वायरमेंट। मतलब हमें हमारा रूटीन और हमारा सराउंडिंग इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, या फिर हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें विल पावर की बहुत कम ज़रूरत पड़े। इनफैक्ट दिस इज द स्टडी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने देखा, तो ऑल ऑफ अस नो दैट 1971 में यूएस और वियतनाम का वार हुआ था। तो यूएस के जो सोल्जर्स वियतनाम में गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, उनमें से 15% सोल्जर्स गॉट एडिक्टेड टू हेरोइन एंड अदर एडिक्शंस, ड्रग्स एडिक्शन में चले गए थे। तो उस जब वो वापस आए, तो वापस जब आए उनमें से ऑटोमेटिकली 10% ऑलमोस्ट लोग जो है वो वापस आने से ही ठीक हो गए। वहाँ से 5% लोग जस्ट री-एडिक्टेड हो गए और 12% क्या है, रिलैप्स्ड हो गया। तो व्हाट वाज द टेक अवे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ दिस स्टडी इज, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट चेंज सो डिड द हैबिट। दैट्स व्हाई ये हमेशा याद रखना, योर इन्वायरमेंट हैज़ ए इनविजिबल हैंड इन शेपिंग योर बिहेवियर। आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके बिहेवियर को शेप करने में, आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। इनफैक्ट देयर इज़ अ रूल इन साइकोलॉजी, if you want to change your behavior drastically, change your environment drastically। So and the thing is, the irony is you also don't know, क्योंकि it is a completely unconscious process। ये इतनी अनकॉन्शियस होती है कि इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। So optimization of the environment and using the willpower is the best strategy to replace a habit। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक तो आपको ऐसा रूटीन आपका बनाना पड़ेगा, सराउंडिंग आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपको विल पावर की बहुत कम यूज होता हो, एंड दैट विल बिकम अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू रिप्लेस द हैबिट। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं। इफ यू फील डिस्ट्रैक्टेड बाय द सेल फोन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट योर सेल फोन
ऑल टुगेदर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रूम जब आप पढ़ाई करते हो या फिर आप जब काम करना चाहते हो। तो इनफैक्ट रिसर्च इज शोइंग दैट इफ यू पुट अ सेल फोन ऑन योर टेबल व्हाइल स्टडिंग, वन थर्ड ऑफ योर इंटेलिजेंस तो ऐसे ही कम हो जाता है। तो वेदर यू यूज इट और नॉट, अगर आप यूज करो या ना करो, उसकी तरफ देख के ही आपका वन थर्ड इंटेलिजेंस कम हो जाता है। तो इस अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा विल पावर है, मैं फिर भी कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, बेटे यू आर अंडर द इल्यूजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स हाईली साइंटिफिक। So you need to take it into cognizance that willpower plus optimization of the environment, then only you can will able to do it. In fact मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मेरे पास विल पावर है, आई कैन यूज द, मैं आई कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द सेल फोन। बट व्हेन आई गॉट इनटू फील्ड ऑफ साइक आई अंडरस्टूड दैट द मोर, एक चीज मुझे रियलाइज हुई जितना मैं इस फील्ड में आगे जाता हूँ, तो आई रियलाइज डोंट ट्रस्ट ऑन योर माइंड वॉट एवर इट इज टेलिंग यू। So this is the thing, and when I understood it, you can see that I started using this cell phone, जो डब्बे वाला होता है, and I am very happy with it. I am mindful and I am enjoying the life, every moment of life because of it. Now second, if you are a person who is trying to quit smoking, in fact smoking is a completely different type of addiction. I'll make a separate video on this. But अगर आप कोशिश करते हो तो उसमें एक चीज जरूर ऐड करना, इवन चेंजिंग अ रूट दैट लीड टू योर सिगरेट शॉप या स्मोकिंग शॉप जो है, वो भी आपका जो क्रेविंग आता है स्मोकिंग का, वो आपको दूर कर सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल एज द विल पावर। इफ यू आर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सेल्फ esteem अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका कम है, एंड समवेयर यू आर फीलिंग डाउन इन माउथ, आपको अगर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, तो आप अगर ऐसे इंसान हो कि यस मैं अपना आई कैन बाउंस बैक, आई कैन गेट, आई कैन रिगेन माई कॉन्फिडेंस, यस एब्सोल्युटली यू कैन, बट नॉट एवरी टाइम। तो दिस इज, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली आपका कोई दोस्त का अगर वहाँ पे फोटो आपको दिख गया तो नेचुरली योर माइंड विल कंपेयर, इनफैक्ट योर माइंड इज हार्ड वायर टू कंपेयर द थिंग्स। आपको लगेगा यार वो देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और मैं यहाँ पे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है, एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से कम होते जाएगा, एंड इट विल बिकम विशियस साइकिल, एंड गेट यू विल गेट कॉट इन दिस विशियस साइकिल, और आप अपने ही युगों में रह जाओगे कि मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, मेरा विल पावर ज़्यादा है। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। अगर आपको लगता है टाइम है आपका सेल फोन की वजह से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा रील्स देख रहे हो, तो हाउ यू कैन कंट्रोल इज, इनफैक्ट व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल थिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको लग रहा है इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यूज़ इट फॉर सम टाइम, एंड जैसे यूज़ होता है अनइंस्टॉल द ऐप, अनइंस्टॉल कर दो उसको। नाउ अनइंस्टॉल कर दे, फिर से जब यूज़ करने की इच्छा होती है फिर से इंस्टॉल करो, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड इट्स वेरी यूजफुल। व्हाट वी आर डूइंग, हर एक यूज़ के बाद अनइंस्टॉल, यूज़ कर रहे तो इंस्टॉल, वी आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस बिटवीन द क्रेविंग एंड द बिहेवियर विच योर माइंड इज ट्राइंग टू डू। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इनफैक्ट आपके माइंड को पता चलेगा कि हर बार इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, और इतना काम माइंड कभी करने नहीं देता है। इनफैक्ट जहाँ पे मेहनत है वहाँ पे माइंड विल मेक एवरी मीन्स अवेलेबल टू टेक अवे फ्रॉम दिस टास्क। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, इसको यूज़ करने के लिए इट डजेंट नीड एनी रॉकेट साइंस। इसको यूज़ करने के लिए आपको इनफैक्ट इट्स अ जीरो कॉस्ट, कोई पैसा भी नहीं लगता है। इट ऑल यू कैन इजीली एग्जीक्यूट इट इन योर रियल लाइफ। So why is it so? Why environment has an invisible hand in shaping your behavior? There is a concept of mirror neurons. I don't want to get into much details. थोड़ा सा बताना चाहूँगा because it's worth knowing. मिरर न्यूरॉन्स नाम से ही पता चलता है, इनका काम होता है बेसिकली चीज़ों को इमिटेट करना, कॉपी करते रहना जो भी आपके बिहेव आजू बाजू में चल रहा है। इनफैक्ट इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, इफ समवन स्माइल्स एट यू, कोई अगर आपकी तरफ देख के स्माइल देता है, यू नेचुरली स्माइल्स बैक। व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स। ओके, तो इसीलिए बोल मिरर न्यूरॉन्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एंड इसीलिए बोलते हैं कि हैंग आउट विद द गुड पीपल, द बुक यू रीड एंड द फ्रेंड्स यू हैंग आउट विद डिसाइड्स योर फ्यूचर, ऐसा बोलते हैं। इफ यू हैंग आउट विद द 5 broken people, you will be the sixth broken person. If you hang out with the 5 successful people, you will be the sixth successful people. इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स, और ये आपको पता भी नहीं चलता है वेन दैट विल, कोई इन्वायरमेंट का कोई कंपोनेंट आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगा, एंड इट विल शेप योर पर्सनैलिटी। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट्स वाई इट्स यू नीड टू बी हाईली कॉन्शियस वाई ऑफ योर सराउंडिंग्स।
So that was about the breaking, that was the inverse of the first law. Now let's see the second law of habit formation. It is nothing but make it attractive. जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको हैबिट लुक के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आई टोल्ड यू इनफैक्ट हैबिट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामिन. तो इट्स अ डोपामिन लूप. तो इसका यूज करके हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? तो देर इज समथिंग कॉल्ड टेम्पटेशन बंडलिंग. टेम्पटेशन बंडलिंग में क्या होता है? इट्स सिंपल, इज बेस्ड ऑन प्रीमैक्स प्रिंसिपल. प्रीमैक्स वाज द साइकोलॉजिस्ट. उसका उसने एक चीज बताई थी, मोर प्रोबेबल बिहेवियर reinforces less probable behavior. It's quite easy. For example, हैबिट आई नीड हैबिट आई नीड इज नथिंग बट ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको पता है कि आपने करना चाहिए, बट आपका बैक ऑफ द माइंड, डीप डाउन इन योर सेल्फ आपको पता है इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज. बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अप एंड डू द मेडिटेट. बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड डेवलप योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस. ये पता सबको है, बट आपका माइंड आपको ये करने नहीं देता है. दैट इज समथिंग यू शुड, that is what you need to do. And what habit I want is nothing but it is a behavior which your mind is craving, that is watching Netflix or any activity like Instagram, watching reels. So ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका माइंड करना चाहता है, या ऐसी चीज़ें आपको पता है आपने करना चाहिए बट आपका माइंड करने नहीं देता है. तो सिंपली आपको ये क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना है. बिकॉज इसमें डोपामिन का हिट मिलेगा, यू विल गेट द डोपामिन फ्रॉम हियर. और इसका डोपामिन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को पूरा कर रहे हैं. तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे सोचना है कि जैसे ही मैंने एक्सरसाइज कर ली, देन ओनली आई विल वॉच द नेटफ्लिक्स. फॉर इंस्टेंस, जैसे ही मैंने मेडिटेशन कर लिया, देन ओनली आई विल वॉच द इंस्टाग्राम रील्स. जैसे ही मैंने पढ़ाई कर ली, देन ओनली आई विल गो आउटसाइड एंड वॉच अ मूवी. तो दिस इज व्हाट द टेम्पटेशन बंडलिंग इज ऑल अबाउट. नाउ हैबिट स्टैकिंग जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? तो हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग दोनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया, इट विल बिकम अ पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर हैबिट फॉर्मेशन. तो इट्स वेरी इजी. हैबिट, करंट हैबिट, आपका जो भी हैबिट है उसके साथ स्टैकिंग क्या करना है आपको, हैबिट यू आई नीड, दैट इज मतलब आपको पता है एक्सरसाइज करना जरूरी है, मेडिटेशन, स्टडीज, रीडिंग, ये आपके हैबिट जहाँ पे आपको यू शुड डू इट, दैट इज आपको पता है आपने करना चाहिए. एंड हैबिट यू वांट, दैट इज योर माइंड इज क्रेविंग एनीथिंग दैट विच इज गिविंग यू मोर डोपामिन. तो इसका एग्जांपल आई गिव यू, इट्स बिकम वेरी इजी. तो वॉचिंग नेटफ्लिक्स इज समथिंग विच हैबिट यू वांट, जो आपका माइंड क्रेव कर रहा है. एंड हैबिट यू नीड, दैट इज आपको पता है बैक ऑफ द माइंड विच यू शुड डू इट, बिकॉज आपका माइंड आपको करने नहीं देता है. एंड एग्जिस्टिंग हैबिट, कोई भी आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. तो मैंने मेरा हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग का सेंटेंस कैसे बना था? आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस एट 6:30, विच इज आई यूजुअली कम, दिस इज माई एग्जिस्टिंग हैबिट. I'll read psychology, that is a habit मुझे पता है कि मुझे पढ़ना ज़रूरी है. आई नीड टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजी एज मच एज आई कैन, विच विल हेल्प मी टू मेक माई लाइफ एंड अदर्स लाइफ बेटर. एंड उसके बाद मुझे पता है कि हैबिट मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूँ. तो इस तरीके से आई कैन डू इट, दोनों को मैं स्टैक कर सकता हूँ, हैबिट स्टैकिंग एंड टेम्पटेशन बंडलिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर. आई हाईली रिक्वेस्ट यू, अगर आपको समझ में नहीं आया, रिवाइंड द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन यूज इट. इस तरीके से आप हैबिट को बिल्ड कर सकते हो. नाउ विजुअलाइजेशन ऑफ हैबिट, एक्चुअली हैबिट बनती कैसे? इट्स क्वाइट इजी. न्यूरल कनेक्शन, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन होंगे उतना जल्दी आपका हैबिट बनेगा. दैट इज नथिंग बट अ रिपीटेशन. चीज़ों को जितना रिपीट करोगे, इट विल बिकम योर हैबिट. नेक्स्ट, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब सिंपली ये ब्रेकिंग में ज़्यादा यूज होता है. जैसे मैंने इंस्टाग्राम का आपका एग्जाम्पल दिया था, जब कभी इच्छा होगी इंस्टॉल करो, यूज़ करना होगा अनइंस्टॉल कर दो. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस, इसके बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. और जहाँ पे मेहनत है, आपका माइंड वहाँ से भागने की कोशिश करेगा ना, दैट विल नेचुरली ब्रेक योर थिंग. रिपल इफेक्ट, इट्स क्वाइट इजी. इनफैक्ट जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे काइजेन बोला जाता है. काइजेन मतलब स्मॉल डेवलपमेंट ऑन अ डेली बेसिस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज वी नीड टू सेट अ थेम्स ऑन फायर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें लगता है कि कुछ चेंज करने के लिए कुछ तो भी तूफानी करना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ऑल यू नीड टू डू, टेक स्मॉल स्टेप्स
छोटे छोटे स्टेप्स डेली बेसिस के कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते हो, यू विल एबल टू चेंज योर हैबिट. Next, if we make the inversion of second law, what was the second law? Make it attractive. So ये हैबिट फॉर्म करने के लिए था. अगर हमें ब्रेक करना है या रिप्लेस करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक इट अनअट्रैक्टिव. इसको समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल मुझे चीज़ें समझानी पड़ेगी, बट आई मेक श्योर दैट आई मेक एक्सप्लेनेशन एज इजी एज ABCD एंड काफ़ी इजी होगा. तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या जो मोबाइल से एडिक्टेड होते हैं, जैसे ही आप मोबाइल को देखते हो, यू दैट एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड. एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? इमेजिन करना या फिर आपको देखना. जैसे ही आपको कोई चीज़ दिख जाती है जिससे आप एडिक्टेड हो, तभी के तभी आपको डोपामिन का हिट मिलता है. यू गेट अ सिक्रीशन ऑफ डोपामिन इन योर माइंड. एंड ये डोपामिन जो मिलता है आपको, ये आपको क्रेव करता है. उस ऑटोमेटिकली आपको आपका माइंड और आपकी बॉडी लेके चली जाती है वो बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज देयर इज अ डोपामिन. नाउ दूसरी चीज़ अगर आपको या सिंपली समझना है, दिस इज इम्पोर्टेंट. जैसे ही आप एंटिसिपेट या वो चीज़ दिखती है आपको, यू गेट बेस बेसलाइन से आपका डोपामिन का जो कर्व होता है ऊपर चला जाता है. यू कैन से इट इज़ अ +10 यूनिट्स आप बोल सकते हो. एंड दिस इज अ कर्व ऑफ प्लेजर. एंड क्या होता है, जैसे ही आपने देख लिया तो कुछ समय बाद इंस्टेंटली क्या हो जाता है, वो कर्व क्या होता है, नीचे चला जाता है. वो चला जाता है -10 यूनिट्स में, निगेटिव में. बेस लाइन जो था उसके निगेटिव में. अब दिस इज प्लेजर एंड दिस इज पेन. नाउ ये आप जैसे ही आपने मोबाइल देख लिया, ये ऊपर चला गया और इंस्टेंटली वो नीचे आ जाता है. अब ये जो पेन हो रहा है, ये आपको फोर्स करता है कि आप उस बिहेवियर को करो, जो एक्टिविटी का आपका एडिक्शन है वो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि वी वॉच सेल फोन और जो भी हमारा एडिक्शन है वो हम करते हैं आउट ऑफ द प्लेजर. नो, वी डोंट डू इट. वी डोंट डू इट बिकॉज वी वांट प्लेजर. वी want to get rid of ourselves from the pain, psychological pain जो हम सफ़र कर रहे हैं. तो इट्स बेसिकली, अब ये क्या होता है, जैसे ही आपने नेक्स्ट टाइम उस एक्टिविटी की तो आपको ज़्यादा डोपामिन मिलता है. अब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे आएगा. अगेन थर्ड टाइम करोगे और ऊपर जाएगा और ऊपर आएगा एंड इट टर्न्स इनटू द एडिक्शन. इस तरीके से चीज़ें एडिक्शन में तब्दील होती है. यू कैन अंडरस्टैंड इट. नाउ ये जो आपको नेगेटिव में जा रहा है, ये जो पेन हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डोपामिन डिफिशियंसी. ये डोपामिन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है. तो इट्स क्वाइट लॉजिकल. अगर हमने कोई एक्टिविटी ऐसी यहाँ पे की जो डोपामिन का जो माइनस यूनिट है आपका, वो बेस लाइन पे अगर यहाँ पे भी ला दिया, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू विल रिप्लेस दैट बिहेवियर, यू विल रिप्लेस दैट हैबिट विद अ न्यू बिहेवियर. तो हमें ऐसे बिहेवियर और एक्टिविटीज़ देखना है जो आपका ये जो पेन है उसको दूर कर दे. यू विल इजीली एबल टू रिप्लेस द हैबिट. सो लेट्स सी ऐसे कौन से बिहेवियर है जो आपकी डोपामिन डिफिशियंसी को बेसलाइन में लाके खड़ा कर दे. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. एंड व्हेन आई से ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग दैट कैन रिप्लेस द स्लीप. तो इनफैक्ट ऐसा ऐसा बोलते हैं, विच आई फर्मली बिलीव, दैट गिविंग योर सेल्फ 8 hours of sleep in 21st century is a new badge of honor. It's a ultimate sign of self respect. I recommended is 8 hours of sleep, and trust me, you need to fight for that. नेचर ने हमें बनाया है, इट्स वेरी फ्री थिंग विच वी कैन डू इट. बट द थिंग इज कि आज वी कैन नॉट टेक इट. यू नीड टू फाइट फॉर इट, फॉर द 8 hours of sleep. Next is the sunlight. Most of the time I say we are not part of nature. We are not connected with the nature. We are the nature. हम ही nature है. So that is the thing. So morning sunlight, स्पेशली जो मॉर्निंग सनलाइट होती है और इवनिंग का जो सनलाइट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइज़ एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो मेक श्योर दैट द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू द नेचर, द बेटर इट इज़ फॉर योर एंटायर वेलबींग. नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज़ नथिंग बट मेडिटेशन. मेडिटेशन में भी देर इज समथिंग कॉल्ड NSDR. NSDR क्या होता है? नॉन स्लीप डीप रेस्ट. इसे ही योगा निद्रा बोला जाता है.
और योगा निद्रा को ही स्लीप योगा भी बोलते हैं। तो ये कैसे परफॉर्म करना है, इट्स क्वाइट इजी। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट देर इज ऐप कॉल्ड वेकिंग अप। वेकिंग अप में जाके आप, या फिर यूट्यूब पे सिंपली यू गो ऑन द यूट्यूब, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ योगा निद्रा। वहाँ पे जस्ट टाइप इट योगा निद्रा, पुट द हेयरफोन्स इन योर ईयर्स एंड यू लिसन टू द स्क्रिप्ट एंड फॉलो वॉट एवर इट इज, वॉट एवर दैट पर्सन जो गाइडेड मेडिटेशन की तरह होता है वो आप वैसे करोगे, यू विल गेट द डोपामिन का बेस लाइन लेवल आपका ठीक हो जाएगा। Next is most important of all is exercise. Exercise, uh, okay, and it's very important. It's highly logical. You need to exercise in order to survive in the 21st century. ऐसा बोलते हैं कि all of us have थ्री होम्स। एक होता है जिसमें आप जो घर आप जहाँ पे रहते हो, दूसरा घर आपका अर्थ, एंड तीसरा घर है आपका बॉडी। जहाँ पे रहते हो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव इन। उसी का अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। Next is nothing but the cold exposure, deliberate cold exposure. Recently, I was going through a research paper which was published in the European Journal of Psychology, and it was given that कि cold exposure से not only आपको dopamine मिलता है, but you get epinephrine also, and you get acetylcholine also, and all of these are important for focus and concentration, happiness, peace of mind. So whatever you want is already hidden in this neurotransmitter. All you need to do is follow these activities. Okay, that's it for today, guys. If you like this video, make sure that you like it, subscribe it, share it. You can follow me Instagram Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.